Good morning, everyone. How are you all? Everybody is fit, fine, and safe at home. जी अच्छा. Today we are going to study very important topic of class 11th. जो terms आप throughout life, because you people are biology students now, वो terms आप throughout life देखते रहोगे bio में. ठीक है, तो please be with me carefully, and you should be having copy pen in your hands and note down along with. Right? चलिए, let's start everyone. So today we are going to study topic 2, living world, diversity and taxonomical categories and aids. देखते हैं कौन सी है. Let's see first आपके सामने क्या आ रहा है, nomenclature का definition. What do you mean by nomenclature? Nomenclature means naming. ठीक है, कि देखो whatever the living organism is there, ठीक है, name is very important है ना. नेम से उसको रिकोगनाइज करते हैं, सारा कुछ जो भी नेमिंग से होएगा. सो उसकी नेमिंग करना, साइंटिफिक नेमिंग करना, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ नॉमेनक्लेचर. Nomenclature is a system of naming living organisms in a way that a particular organism is known by the same name all over the world. This is important. The person should be, the person, not only the person, an organism should be recognized by one name throughout the world. Right? Only then it will be easy and convenient for the scientific study. आगे देखिए, in front of you there are two terms, star terms हैं, बहुत बारी आपसे पूछी जाएंगी, and you people are always confused between the two terms. So please listen carefully, read carefully and note down करना notebook पे along with everything. जी, see, it's two terms, taxonomy and systematics. Taxonomy is what? It is a science of identification, nomenclature and classification. Systematics है क्या? It's a study of diversity, comparative and evolutionary relationships. So taxonomy क्या है कि any organism you have find out, उसकी identify करना, उसकी naming करना और उसकी classification करना. पर systematics में क्या आ रहा है? उसकी diversity, variety देखना, comparative and evolutionary relationship. This is important. Systematics include एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के पिछले, उसके पूर्वज, है ना. एवोल्यूशन में है ना, पिछली पूर्वज कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, वो सारी स्टडी करना. एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी इज नॉट इंक्लूडेड इन टेक्सोनॉमी, प्लीज रिमेंबर. इट डील्स विद द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, जो रूल्स और प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन है उसके साथ डील करता है, सारे इसके अंडर रूल्स आएंगे. सिस्टमैटिक्स देखो, इट ब्रिंग्स आउट यूनिक प्रॉपर्टीज एट एवरी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, टेक्सोनॉमी में रूल्स और प्रिंसिपल आ रहे हैं. ठीक है, और जो सिस्टमैटिक्स में यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं हर एक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में, रूल्स नहीं है क्लासिफिकेशन के सिस्टमैटिक्स में. सिस्टमैटिक इज बेसिकली लिंक्ड विद एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी से लिंक करते हैं. आगे देखिए जी. Now you should be knowing the difference between classical taxonomy and modern taxonomy. देखिए, classical taxonomy में क्या था? Only a few individual is studied for describing a species. Obviously, initially just few species were there, and only their study was there. Few species. Obviously, modern में large number of species are studied, but obvious it does not lay much stress on species. ठीक है, species पे ज़्यादा stress उसने सब स्पीसीज पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना. सब स्पीसीज पे क्लासिकल टेक्सोनॉमी ने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना. एंड मॉडर्न टेक्सोनॉमी इट स्टडीज वेरियस पॉपुलेशंस, वैरायटीज एंड सब स्पीसीज ऑफ अ स्पीसीज. ठीक है, सब स्पीसीज पे देखा, पॉपुलेशन देखी, वैरायटीज देखी, सारा कुछ. बट इन क्लासिकल टेक्सोनॉमी इट वाजंट देयर. delimitation of species is based on morphological logical characters only. Morphological means outer look. मॉर्फोलॉजी मीन्स बाहर से देख के, आउटर लुक देख के उससे क्लासीफाई हो रहा था ऑलमोस्ट सारा. ठीक है, बट इट गैदर्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडी फॉर डिलिमिटेशन ऑफ अ स्पीसीज. ठीक है, तो बट मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्पीसीज इज कंसिडर्ड. सिर्फ मॉर्फोलॉजी मीन्स आउटर लुक नहीं देखी, एवरी एस्पेक्ट, एनाटॉमी देखी, सेल स्ट्रक्चर, एवरीथिंग. स्पीसीज इज कंसिडर्ड द स्टैटिक और फिक्स्ड ऑफ एवोल्यूशन. ठीक है, क्लासिकल में पहले बोला कि स्पीसीज एक स्टिल है, ऐसी रहेगी हमेशा. बट मॉडर्न टेक्सोनॉमी सेइंग व्हाट, स्पीसीज इज कंसिडर्ड
टू बी ए डायनामिक एंड एवर चेंजिंग एंटिटी, ठीक है, डायनामिक है, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, वो ये फिक्स थोड़ी है, क्या पता वो रहेगी या ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. It has given rise to more or less an artificial system of classification. Obviously classical जो था वो more or less artificial था, it was not natural, सिर्फ outer look दे रहे हो, proper है ही नहीं. But it deals with the natural and phylogenetical system of classification. Natural है और phylogenetically लिख लो, स्टार डाल के और लिख लो. phylogenetic का मीनिंग होता है evolutionary relationships. evolutionary relationships के पिछले आपके जो पूर्वज, जो पीछे स्पीसीज थी, ठीक है, जो एवोल्यूशन हुई है. फाइलोजेनेटिक मीन्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है जी. तो ये एक नोटबुक पे अपनी नोट कर लीजिएगा. 5 पॉइंट्स नहीं, आप कोई भी 3 पॉइंट्स याद कर सकते हो. क्लासिकल टेक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टेक्सोनॉमी, पहले टेक्सोनॉमी और अब की टेक्सोनॉमी में क्या डिफरेंस है. आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. सी, कार्लस लीनियस. कार्लस लीनियस है क्या? ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. कार्लस लीनियस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. फाइलोजेनी है क्या? फाइलोजेनी इज एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और लीनियज ऑफ वन और मोर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. याद रखिए, फाइलोजेनी एक्चुअली एवोल्यूशन की स्टडी को बोलते हैं, ठीक है. एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के पिछले पूर्वज कैसे थे, क्या चेंजेस थे, क्या चेंजेस नहीं आए थे, तो सारा. It is based on the study of fossils, comparative anatomy and other fields of study. ठीक है कि सारी मतलब जो एवोल्यूशन की स्टडी है ना वो फाइलोजेनी में आएगी. एवोल्यूशन ऑब्वियसली आपको पता फॉसिल्स की स्टडी करके करते हैं, आपने ये 10th में भी किया था, ठीक है. आगे आपके सामने टर्म आ रही है बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मीन्स व्हाट? सोचो ज़रा, क्या है जी? इट मीन्स all the variety of living organism, whether it is plant, animal, microbe, कोई भी living organism है, it will come under biodiversity. The term biodiversity or biological diversity means the entire number and types of organisms present on the earth. The living world includes all the living organisms such as microorganisms, plants, animals and humans. Biodiversity is not limited to the existing life form. Biodiversity यानी कि सिर्फ जो अभी life form present है, जो microbes, plants, animals present है, no. जो पहले भी प्रेजेंट थे, जो खत्म हो चुके हैं, दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन बायोडाइवर्सिटी. As we continue to explore new areas and even odd ones, new organisms are continuously being added. This huge available variety cannot be studied and identified without having a proper system of classification and nomenclature. तो कितनी वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की होगी, तो उसको अगर स्टडी करना है तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर के बिना वो पॉसिबल नहीं है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है. तो क्या है जी? तो जो नेमिंग है, नोमेनक्लेचर है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. नोमेनक्लेचर है क्या? मैंने आपको पहले भी बताया. नोमेनक्लेचर इज मेकिंग एंड गिविंग प्रॉपर, स्पेसिफिक एंड डिस्टिंग्विशिंग नेम टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म. ठीक है, प्रॉपर नेम देना, क्लासिक, स्पेसिफिक. एक ये नहीं कि एक का नेम और दूसरे का नेम सेम है, नो, इट शुड बी स्पेसिफिक, वन फॉर वन स्पीसीज. It's of two types, common names and scientific names. The mode of giving scientific name is binomial nomenclature. Scientific name देना को क्या बोलते हैं? Binomial nomenclature. ठीक है, और दूसरा common name, दूसरे common name. देखिए advantages of common name. ठीक है, अब हमें अब if you talk about a layman, ठीक है, he is simply using the term cow, buffalo, parrot, है ना, चिड़िया, स्पैरो, कॉमन टर्म्स बोल रहे हैं ना. क्या बेनिफिट है उसके? देखिए एडवांटेजेस है क्या कॉमन नेम के. फर्स्ट है, कॉमन नेम्स आर इजी टू प्रोनाउंस एंड शॉर्ट. ऑब्वियसली कैट, बिल्ली, छोटे छोटे टर्म्स है, फटाफट हम बोल लेते हैं. पीपल आर फेमिलियर विद दीज नेम्स एज चाइल्डहुड. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, चाइल्डहुड से जो जो नेम्स आपके मुंह पे चढ़े हुए हैं वही आप लोग बोलते हो. They are based on some features of organisms as कौवा. कौवा क्या करता है? काउ करता है ना, उसके एक एक करेक्टरिस्टिक को लेके हमने उसका नेम बना दिया, उसको बोलते हैं कौवा, क्रो, है ना. एक एक करेक्टरिस्टिक को लेके हमने कर दिया. बट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस है क्या कॉमन नेम की? क्या हम उसे अपने बायोलॉजिकल टर्म्स, साइंटिफिक स्टडी में क्यों नहीं हम उसे यूज़ कर सकते? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? देखिए, all the organisms cannot named by this method as there are organisms of different shapes and sizes and shapes, some of which are not directly perceived by man and thus remain unnamed. For example, microbes, है ना. हर एक देखो माइक्रोब्स है, वो तो ह्यूमंस देख ही नहीं सकता,
जी, तो उसको नेमिंग कैसे करेगा? ठीक है, लाइक माइक्रोब्स है तो वो उसकी नेमिंग तो हो ही नहीं पाएगी ऐसे अगर कॉमन नेम से हम करें। तो एन ऑर्गेनिज्म मे हैव सेवरल नेम इन अ गिवन लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल देयर आर 8 हिंदी नेम्स ऑफ prickly poppy and water lily has 15 English names। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के अगर कॉमन नेम देखो तो पता नहीं कितने सारे हैं, है ना। सो इट्स ऑल्सो बिग प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, कॉमन नेम। सी आई एम हैविंग 5-6 पॉइंट्स, यू आर सपोज टू लर्न ओनली 2 to 3 मैक्सिमम पॉइंट्स, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा ये आपको। कॉमन नेम्स में हैव लिटिल रेलिवेंस, समटाइम्स रेलिवेंस में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेडी फिंगर, ओकरा, नो रेलिवेंस। विडोज टीयर, ट्रेडस्टेंटिया, किस मी क्विक, यूफोबिया, ब्लड सकर। ब्लड सकर किसको बोल रहे हैं? लिजर्ड को, मतलब कैलॉट्स और लिजर्ड। देखो मतलब नेम कुछ और है, कॉमन नेम, वो ऑर्गेनिज्म कुछ और है, समटाइम रेलिवेंट है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये भी वहाँ पे प्रॉब्लम करता है। आगे देखिए, द कॉमन नेम्स मे हैव इनकरेक्ट और मिसलीडिंग। फॉर एग्जाम्पल जेलीफिश, वो सीलेंट, जेलीफिश फिश है ही नहीं, वो तो सीलेंट्रेट है। सिल्वर फिश, वो एक आर्थ्रोपोड है, इंसेक्ट फैमिली है। स्टारफिश फिश है ही नहीं, वो तो एक कैनोडर्म है। सो दीज आर नॉट रियल फिशेस, तो ये मिसलीडिंग हो गया ना, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक हो गया। वन कॉमन नेम मे हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कंट्रीज। देखो, मेज मीन्स wheat and other grains in USA and it is called corn in Commonwealth countries। ठीक है, एक कंट्री में उसको कुछ और बोल रहे हैं, दूसरी कंट्री में कुछ और बोल रहे हैं, वो भी प्रॉब्लमेटिक। सो दीज आर नॉट यूजफुल फॉर साइंटिफिक स्टडीज। ठीक है, इसको साइंटिफिक स्टडीज में हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए आपके सामने कुछ कॉमन नेम्स ही हैं। कॉमन नेम्स ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रोज़ को गुलाब भी बोलते हैं, गोलब, जुप्पा, डॉग को कुकर, कुत्ता, कुत्तो, सवन्ने। देयर आर डिफरेंट नेम्स, सी इन फ्रंट ऑफ यू। If you want to write, you can write. They are not going to come in your exam. You are just supposed to read it out. It's for you. कि जी common names are different parts में different names हैं उसके। Okay, आगे देखिए। Then come scientific name. Scientific name are important. जो आज मेन scientific study में यूज़ होते हैं वो scientific name ही हैं जी। The scientific name is given by biologists. Each name represents a particular organism in all parts of the world. The system of providing scientific name is called binomial nomenclature. क्या बोलते हैं उस जो the nomenclature which deals with the scientific study, scientific naming, that is known as binomial nomenclature. The scientific names must be क्या होना चाहिए? It must be acceptable in every part of the world, assigned on agreed principles and criteria। ठीक है, पूरे principles और criteria को वो agree करना चाहिए। Different for each species and not used for other organism only। ना पहले कभी यूज़ हो ना बाद में यूज़ हो, it should be very specific। So yes please, binomial nomenclature। See, it was first developed by Carlos Linnaeus, याद रखिएगा। All scientific names for animals under binomial nomenclature were given by Linnaeus। See, it's a big name. Almost all animals under binomial nomenclature were named by Linnaeus in the 10th book of his edition, Systema Naturae। वो बेचारा लिखते लिखते मर गया बेचारा। ठीक है, एक्चुअली ही इज़ हैविंग बिग कंट्रीब्यूशन। तो आज हम अगर उसका बुक का नेम या उसका नेम याद करना छोड़ दें तो वो तो गलत होएगा ना। ही हैज़ डन अ लॉट। सो प्लीज़ रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक, सिस्टेमा नेचुरल, कार्लस लीनियस। ही डिड लॉट। ठीक है, यही कुछ इतना कंट्रीब्यूट करते करते वो चले गए हैं। सो हम उसके बुक का एटलीस्ट नेम याद करके, उसका नेम याद करके हमेशा रख सकते हैं। दैट विल बी बिग कंट्रीब्यूशन टू हिम। Linnaeus named plants according to binomial nomenclature in his book Species Pantarum। एनिमल्स के लिए कौन सी बुक थी? सिस्टेमा नेचुरा। और प्लांट्स के लिए स्पीसीज प्लांटेरम। प्लीज याद रखिएगा ये। नाउ कम द रूल्स फॉर अब ये बड़े इंपॉर्टेंट अभी आप करने जा रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आई रिमेंबर आई गेव कंपटीशन एग्ज़ाम और द क्वेश्चन वाज देयर। ये फुल फॉर्म्स आई थी। फुल फॉर्म में पता क्या कंफ्यूज कर रहे थे? ऑफ और फॉर से। देखना आगे, याद रखना है, लिख लो नोटबुक पर, बड़े इंपॉर्टेंट है। See, the rules are revised again for following nomenclature codes.
ठीक है, बाद में भी काफ़ी उन्हें रूल्स ऐड ऑन किए, चेंज किए. The rules of nomenclature were initially framed by Linnaeus in his book Species Pantherum and Systema Natura. तो पहले इनिशियली जो रूल्स Linnaeus ने दिए थे अपनी बुक्स में, जो हमने अभी किए हैं, प्लांट्स के लिए स्पीसीज पेंटेरम और एनिमल्स के लिए स्पीसीज सिस्टेमा नेचुरा. उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे, रिवाइज किए थे, नॉट चेंजेस वी शुड से. देखिए जी, याद कर लो, नोटबुक पे अच्छे से 2-3 बार लिख लो. ICBN इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. ये फॉर आया. इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये ऑफ आया. ICZN याद रखिएगा, फुल फॉर्म स्टार फुल फॉर्म्स हैं. ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. Then come ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर. इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर. लास्ट आ रहा है ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स. ठीक है, ये सारी थी ऑर्गेनाइजेशंस जिसने रिवाइज किए थे नॉमेनक्लेचर के रूल्स. इसकी फुल फॉर्म्स याद रखिए. ये बहुत बड़ी आपको कंपटीशन में जितना जितना आगे जाओगे बायोलॉजी में आपको पूछी जाएंगी. आगे आपने जॉब्स भी लेनी, सारा कुछ लेना, पूछी जाती है. आपको बड़ा कंफ्यूज करते हैं. इंटरनेशनल से इंडिया लिख दिया, फॉर से ऑफ लिख दिया, ऑफ से फॉर लिख दिया. सो प्लीज़ रिमेंबर 5 टाइम्स नोटबुक पे लिख लीजिएगा. ऐसे नहीं करिएगा कि नहीं जी मैंने कर लिया. ओके, यस प्लीज, दीज रूल्स यू पीपल हैव डन इन योर 9th क्लास ऑल्सो. डाइवर्सिटी का जो लास्ट पेज था डाइवर्सिटी चैप्टर का, आपने वहाँ पे किए थे. सो वी आर गोइंग टू रिपीट दम अगैन. द नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. ठीक है, लैटिन ओरिजिन है और इटैलिक्स में लिखा जाता है. द फर्स्ट वर्ड इन बोटानिकल नेम रिप्रेजेंट्स अ जीनस. फर्स्ट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा? जीनस. एंड द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स स्पेसिफिक एपिथेट. सेकंड क्या डिनोट करेगा? स्पीसीज. फर्स्ट नेम डिनोट करेगा जीनस एंड सेकंड नेम स्पीसीज. बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम्स when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. ठीक है, उसको सेपरेटली क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं. देखो वैसे तो अगर आप लोग इटैलिक्स में लिख रहे हो फिर ठीक है. अगर खुद लिख रहे हो ना तो क्या करना होता है? उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है. ठीक है जी, सेपरेटली उसको क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं. आपको याद होएगा, आपने पढ़ा था पहले भी, है ना. आगे देखिए, तो फर्स्ट वर्ड है डिनोट्स जीनस. फर्स्ट वर्ड क्या डिनोट कर रहा है? जीनस. क्या डिनोट कर रहा है? जीनस. जो जीनस होएगा यू हैव टू स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, और जो स्पीसीज है यू हैव टू स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर. ठीक है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा इज जीनस एंड इंडिका इज स्पीसीज. मैंजीफेरा का M कैपिटल है, इंडिका का M स्मॉल है. ठीक है, देन नेम ऑफ द ऑथर. अगर ऑथर नेम लेना मैंजीफेरा इंडिका के साथ ऐसे जैसे ये लीनियस का था. देखो जैसे लीनियस ने किया था ना डिस्कवर, तो मैंजीफेरा इंडिका के बाद लीनियस का सिर्फ लिन डाल दिया. लिन फॉर लीनियस, ऐसे भी हो सकता है. ठीक है जी, सो प्लीज़ रिमेंबर इट.